بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 فروری ہے اور پورے پاکستان میں کشمیر کے حوالے سے یہ دن منایا جا رہا ہے۔ اگرچہ ہماری خواہش تھی کہ اس موضوع کے اوپر اور اس سے جڑی بہت ساری حقیقتوں کے اوپر بات کریں، لیکن لیٹ نائٹ ڈیولپمنٹ نے مجبور کیا کہ ایک بار پھر ایران امریکہ تنازع کے اوپر ہم بات کریں۔ ریزن یہ بنی کہ ایران کے سپریم لیڈر کے اس اناؤنسمنٹ کے بعد کہ یہ جنگ علاقائی نہیں ہوگی، یعنی علاقائی سے مراد ایران کے اوپر محیط نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک ریجنل وار ہوگی۔ اور پھر میں نے جیسا کہ ریجن کو بھی ڈیفائن کیا کہ ایک ریجن ہے اٹ سیلف اور ایک ایکسٹینڈڈ ریجن ہے جو تقریباً فلسطین سے لے کے تو پرشین گلف تک اس پورے علاقے کو ہم ایک ریجن کہیں گے، اور یہ پورا علاقہ انگلف ہو جائے گا اس جنگ کا، جس کے بعد ایک سچویشن ایسی کریٹ ہوئی کہ امریکن ریلائز، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس بات کو کہا کہ یہ ایک درست سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے بعد یہ لگا کہ شاید کوئی ڈائلاگ کی طرف بات چیت وہ جاری رکھے گی، آگے چلے گی۔ اور اس کی ایک ریزن بھی بنی، چونکہ ایران نے جو واضح میسیجنگ ایران کی اور نیبرنگ گلف اسٹیٹس کے درمیان ہوئی وہ یہ تھی کہ ایران نے ان کو بھی یہ میسج کنوے کیا کہ آپ کو اپنی سوورینٹی کو امریکہ کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کے پاس جو ملٹری انسٹالیشن اور اڈے ہیں دے شوڈ بی کیم ٹو این ہالٹ، یعنی ان کو رک جانا چاہیے، بند ہونا جانا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ اگر یہ فنکشننگ ہو گئے تو یہ کسی نہ کسی طور اس خطے کے اندر امریکی ملٹری آپریٹرز کے سپورٹیو رول کے طور پہ پلے کر رہے ہوں گے اور ہمارا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوں گے۔ اسی وجہ سے متعدد ممالک نے واضح طور پہ یہ سٹینڈ لیا، جن میں یو اے ای شامل ہے، جن میں KSA شامل ہے، جن میں قطر شامل ہے، کہ وہ اپنے ملک میں موجود ملٹری انسٹالیشنز کو جو امریکہ کی ہیں کسی طور جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے امریکہ کو۔ لیکن یہ ایشو سٹل یہ ہے کہ اگر یہ اس کنیکشن کی وجہ سے، جیسا کہ سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر قطر کے اندر ہے، جیسا کہ 5th فلیٹ جو ہے وہ بحرین کے اندر ہے، اگر یہ لاجسٹک اور وہاں سے فائر نہیں ہوتا لیکن لاجسٹک ہے، انفارمیشن ہے اور دیگر بیک اینڈ سپورٹس ہے، یہ جاری رہتی ہیں، تو پھر تو یہ ایران کا جو کہ اس کو ایگزسٹینشل تھریٹ کا سامنا ہے تو یہ ان کا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوگا۔ تو ایسی صورت میں خود خطے کے ممالک بھی ایک پینک کے اندر تھے اور وہ بھی ایفرٹ کر رہے تھے امریکہ کے ساتھ مل کر، اگرچہ ان میں سے بہت سارے ممالک امریکن پریشر کی وجہ سے بھی یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ایران بہت ویک اور کمزور ہو جائے اور ایران ایک پاور کے طور پہ، بالخصوص ایک آئیڈیالوجیکل پاور کے طور پہ باقی نہ رہے، تاکہ وہ لوگ بھی اپنے آپ کو فلسطین کے حوالے سے جو رول پلے نہیں کیا اس کو جسٹیفائی کر سکیں۔ لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک آل آؤٹ وار ہو جائے، چونکہ اس آل آؤٹ وار کا جو امپیکٹ ہے، اگر وہ ڈائریکٹلی اس وار کا پارٹ نہ بھی بنے تو اس پورے ریجن کے اوپر ہے، جس پہ میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ جس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی، بالخصوص فوڈ سیکیورٹی کے اوپر آئے گا، امپورٹ اور ایکسپورٹس بند ہو جائیں گی اور پوری دنیا جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ لیکن یہ مذاکرات ابھی جو ہے جو میں نے کہا کہ ایک وقت میں مذاکرات کا ڈول ڈال رہا تھا، اور یکدم لیٹ نائٹ ڈیولپمنٹ میں یہ مذاکرات تقریباً معطل ہو گئے ہیں۔ اور معطل کیوں ہوئے ہیں اور ایک بار پھر جنگ جو ہے اس کے بادل کیوں چھا رہے ہیں اور یہ جو تھریٹ ہے لومنگ ہے، تو یہ کیوں سچویشن کیا ہوئی؟ تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ جو مذاکرات ہوئے اس کے لیے پہلا ایشو وہ مذاکرات کا جو پیٹرن ہے وہ بنا کہ اس کا فارمیٹ کیا ہوگا۔ امریکہ نے فوری طور پہ یہ کوشش کی کہ وہ اس کو ایک الائنس کی شکل دے دے کہ امریکہ along with other regional countries، اور اس میں انہوں نے گلف کنٹریز کو، ان کے ساتھ ایجپٹ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی دعوت دی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے آفیشلی ایکنالج کیا کہ ہاں یہ دعوت ہمیں مل گئی ہے اور ہم جو ہے وہ اس مذاکراتی عمل کا پارٹ بنیں گے۔ یہ بیسیکلی امریکن پریشر ٹیکٹس تھا، جبکہ مذاکرات تو ان دو کنٹریز کے درمیان، چونکہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے جیسی یعنی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن میں امریکہ 5 پرماننٹ یونائٹڈ نیشن کی جو ممبرز ہیں ان اسٹیٹس پلس جرمنی کو ملا کر بھی ایک معاہدہ کر چکا ہے، اور چند دنوں کے اندر اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا گیا تھا۔ تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر یہ کہ ایک پریشر ٹیکٹس ہوتا ہے جس میں امریکہ اپنے الائز کو لے کر آتا ہے تاکہ ایران کو جو ہے وہ دیوار سے لگانے کی کوشش کرے۔ تو ایران نے سب سے پہلے اس فارمیٹ کے اوپر اعتراض کر دیا کہ یہ جو مذاکرات ہوں گے یہ اگر انڈائریکٹ بھی ہوں گے تو وہ ایک نیوٹرل نیگوشیٹر کے ذریعے سے ہوں گے، نہ یہ کہ اس میں جو ہے وہ ہم دیگر کنٹریز کو شامل کریں گے۔ سیکنڈ جو ایشو بنا وہ یہ ایشو بنا کہ جو وینیو ہے، امریکن کی انٹرسٹ یہ تھا، اگرچہ اس پہ ترکی نے خود رول پلے کیا کہ وہ جو ہے وہ مذاکرات کی طرف بات جائے، لیکن امریکن انٹرسٹ یہ تھا کہ یہ جو وینیو ہے یہ انقرہ ہونا چاہیے، ترکی ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ترکی ایک نیٹو کنٹری ہے اور الٹیمیٹلی امریکن ڈومیننس اور پریشر کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ ترکی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے نارمل تعلقات رکھتا ہے، اور ترکی جو ہے وہ باوجود اس کے کہ وہ نہیں چاہے گا کہ اس خطے کے اندر جنگ شروع ہو، لیکن عملی طور پہ ان کے لیے ایک بہت پاورفل اور مضبوط ایران بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ایک ریئلسٹ
परस्पेक्टिव में एग्जिस्ट करती हैं और स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट से हमेशा थ्रेटन फील करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट और जो भी सारी चीजें। बहरहाल तो दूसरा वेन्यू के ऊपर इतराज हो गया, और चूंकि लास्ट जो न्यूट्रल अमूमी तौर पे नेगोशिएटर समझा जाता है, फैसिलिटेटर भी जिसको आप कह लें, वो ओमान का रोल है। तो ओमान बिल्कुल खित्ते के अंदर भी एक बड़ा अच्छा मुल्क है, और ईरान ने ओमान के हवाले से कहा, चूंकि पिछले जो नेगोशिएशंस जहां पे आके रुक गई थी, तो आखिरी जो ड्यू था वो ओमान के अंदर ही था, लिहाजा मस्कत या ओमान में ही जो है वो ईरान की तरफ से डिमांड थी। अब आ जाते हैं एजेंडे के ऊपर, जहां तीसरा इख्तलाफ एग्जिस्ट किया। एजेंडे में चूंकि ईरान प्री कंडीशंस का कायल नहीं है, और अमेरिका जो है वो ईरान को प्रेशराइज करना चाहता है प्री कंडीशन के जरिए से। अब प्री कंडीशंस का एक मैटर था, और दूसरा ये है कि उन्होंने जो मुज़ाकरात का एजेंडा रखा, वो एजेंडा भी जो है वो काफी आप कह लेंगे नाकाबिल कबूल किस्म का है। तो इस वजह से एक बार फिर ये लगा है कि मुज़ाकरात में अमेरिका संजीदा नहीं है, और अमेरिका मुज़ाकरात के नाम से दरअसल उन्हीं थ्रेट्स को आगे बढ़ाना चाहता है। वो क्या है? जो 4 मेन डिमांड्स हैं। सबसे पहले है जो 420 kg एनरिच यूरेनियम है, तकरीबन 60 to 70% एनरिच यूरेनियम है। ये तकरीबन बहुत आप कह लें कि एडवांस्ड एनरिच्ड है। तो अमेरिका ये चाहता है, और रशिया ने भी इसको तस्लीम किया है, कि ये एनरिच यूरेनियम जो है या तो उनके पास आ जाए, अगर ये काबिल कबूल नहीं है तो कहीं बेच दी जाए किसी थर्ड कंट्री को, और अगर ये भी काबिल कबूल नहीं है तो फिर रशिया जैसे ईरानी अलाई उसके पास जो है इसको अमानतन रखवा दिया जाए। ये एनरिच यूरेनियम जो है वो ईरान के पास नहीं होनी चाहिए। ईरान का रिस्पॉन्स बड़ा क्लियर है, वो ये कहते हैं कि आप तो कह रहे थे कि आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो उसको मुकम्मल खत्म कर दिया है, तो फिर ये एनरिच यूरेनियम कहां है, कैसे है? इसके ऊपर ईरान ने एक स्टेट ऑफिशियल पॉलिसी लॉन्च की है, जिसको हम कह सकते हैं कि अब ईरान ने एक नई तरह की न्यूक्लियर एम्बिगिटी जो है वो अडॉप्ट कर लिया है, और वो ये है कि वो नहीं बताता कि ये स्टॉक पाइल कहां है और किस कैफियत में है। और ये जो एम्बिगिटी होती है, ये बिलाखिर एक आपके लिए पावर भी बन जाती है और दुश्मन के लिए एक थ्रेट भी बन जाती है। एक हर वक्त ज़हन के अंदर एक खलश रहती है कि ये आखिर सलाहियत कहां पर है, और ये सलाहियत जो है वो कैसे इस्तेमाल हो सकती है। तो ये एक पहला इसका एजेंडा था, जिस एजेंडे के ऊपर ईरान ने कहा कि ये नॉन नेगोशिएबल है, इसके ऊपर बात नहीं हो सकती है। हाँ, सेकंड जो एजेंडा है उसको भी ईरान ने इसी तरह रिजेक्ट किया, और वो एजेंडा ये था कि आप जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर 2 तरह की कैप्स लगाएं। एक उसके डिस्टेंस के ऊपर कि वो 2000 किलोमीटर ना कवर कर सके, मतलब 500 या 600 किलोमीटर तक उसकी एक्सेस हो। दूसरा उसकी स्पीड के ऊपर कि आप हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक जो मिसाइल वो नहीं रखेंगे, क्योंकि ये इसराइल को और खित्ते के अंदर अमेरिकन जो उनके अलाइज हैं उन सारों के लिए एक थ्रेट है। इसके ऊपर भी ईरान का वाज़ेह है कि ये भी नॉन नेगोशिएबल है। हमारी जो मिसाइल कैपेसिटी है उसके ऊपर कोई बातचीत और कोई डायलॉग नहीं होगा, लिहाजा अगर ये डायलॉग है तो हम डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। फिर तीसरी चीज जो है वो ये थी कि आप जो है वो मुज़ाहमत के जितने भी आप कह लें कि उसके साथ लोग मरबूत हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंट्रीज हैं, तो आप उनकी सपोर्ट जो है वो मुतलकन बंद कर देंगे। ये जाहिर है ईरान के लिए एक आइडियोलॉजिकल डिग्री ये भी काबिल कबूल नहीं है। तो अल्टीमेटली जो एक एजेंडा बच जाता है और जिसके लिए ईरान भी तैयार है और जो अमेरिका को भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करता है, वो ये है कि ईरान जो है वो ये कहता है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहता। इस मैकेनिज्म के ऊपर बिल्कुल बात हो सकती है, उसमें IAEA को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, न्यूट्रल मुबस्सरीन को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, और वो ऑब्जर्व करें, और हमारी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो हमारा पुरअमन राइट है, और इस राइट के ऊपर हम कोई कंस्ट्रेंट जो है वो कबूल नहीं करेंगे। लिहाजा इसके लिए आप जो है वो ऑब्जर्वेशन रखना चाहें, निगरानी रखना चाहें, कैमरे रखना चाहें, लाइव अपने बंदे रखना चाहें, देयर इज नो इशू, लेकिन हम अपने पीसफुल प्रोग्राम को जरूर आगे बढ़ाएंगे। अलबत्ता जो वेपन ग्रेड यूरेनियम है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, और हम जो है वो 97% प्लस जो है वो अफजूदा यूरेनियम चाहिए होती है, तो हम इसकी एनरिचमेंट का कोई प्लान नहीं रखते, और हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। ये हमारी सुप्रीम लीडरशिप का भी फतवा है, इमाम खुमैनी का भी फतवा है, लिहाजा हम उस फतवे के ऊपर जो है वो खड़े हैं, और हम हमारा स्टेट मौक़िफ़ भी है, उसके ऊपर हम जो है वो अपनी पूरी चीजें देने के लिए तैयार है। ये एग्जैक्टली अगर ये होता तो ये वही एग्रीमेंट है जो JCPOA में हुआ था, और अगर वो एग्रीमेंट इनके लिए काबिल कबूल नहीं था तो फिर इसका मतलब है कि ये एग्रीमेंट भी काबिल कबूल नहीं होगा। इसका मतलब है कि एजेंडे के ऊपर भी बहुत शदीद इख्तलाफ जो है वो आ गया है, और इसके ऊपर भी बात नहीं होगी, और ईरान बड़ा क्लियर है कि इसके ऊपर बात नहीं होगी। फिर यह है कि जो अलबत्ता अगरचे ये राइट है कि आप किस नेगोशिएटर को भेजते हैं, लेकिन जो अमेरिका
नेगोशिएटर भेज रहा है, उनमें से एक तो विटकोफ को भेज रहा है जो ज़ाहिर है उनका रिप्रेजेंटेटिव है स्पेशल, और दूसरा जो है वो जेरेड कृष्णर को भेज रहा है जो दरअसल दामाद है अमेरिकन प्रेसिडेंट का और अपनी खास आइडियोलॉजी की वजह से, जो नेतन्याहू की आइडियोलॉजी है उसकी वजह से मारूफ है। यानी गोया ये समझा जाएगा कि उसका एक मेंबर जो है वो नेगोशिएटिंग टीम के अंदर जो है वो बैठा है। ये खुद इसका मतलब है कि ये एक कामयाब सक्सेसफुल प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि खित्ते में सिचुएशन क्या है जिसमें ये मुज़ाकरात जो है वो होना शुरू हो जाते, तो वार ऑफ नर्व्स जो है वो अपने क्लाइमैक्स के ऊपर है। ताज़ा तरीन इंसिडेंट में जिसको तमाम इंटरनेशनल मीडिया में, चूंकि मैं हमेशा जो कोशिश करता हूं जो बात करूं वो वेरीफाई हो सके, और आप कहीं कोई क्वेश्चन करना चाहें तो हम उसका लिंक भी आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार होंगे। वो ये है कि ईरान का जो शाहिद ड्रोन है, ये ड्रोन तकरीबन 500 माइल अवे है इस वक्त इब्राहिम लिंकन अमेरिका का जो वारशिप है तो ईरान से, तो 500 माइल बड़ा फासला है। तो ईरान का जो शाहिद ड्रोन है, जो सर्विलियंस ड्रोन है, ये काफी अरसे तक उसकी सर्विलेंस करता रहा है, उसका मैप लिया है, उसकी इमेजेस लिए हैं, वहां की मूवमेंट जो है उसकी उसने मुकम्मल तौर पे डॉक्यूमेंटेशन जो ईरान को प्रोवाइड की है, जिसके बाद अमेरिकन नोटिस दिस और F-35S जो उनका जहाज है उसके जरिए से अमेरिका ने ऑफिशियली बताया कि हमने उसको हिट किया है, और उसके बाद जो है वो ये तबाह हो गया, लेकिन उससे पहले ये अपना डाटा जो है वो ट्रांसफॉर्म कर चुका था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईरानी डिफेंसिव नहीं खेल रहा है, ऑफेंसिव खेल रहा है। यानी वो 500 माइल अवे आके अमेरिकन, अलबत्ता इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, ये राइट है उनका, इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर वो कहते हैं हमारा ये रूटीन के ऑपरेशन है, हम इलाके की इंटेलिजेंस गैदरिंग करते रहते हैं, तो इट्स अ रूटीन ऑपरेशन। लेकिन बहरहाल उनकी विल और कमिटमेंट को आपको देखना पड़ेगा कि वो अमेरिका यूएसएस के सबसे बड़े दुनिया की जो वारशिप है उसके ऊपर भी अपने जहाज जो है वो ड्रोन्स भिजवा रहे हैं, और ड्रोन के जरिए से जबरदस्त इंफॉर्मेशन उन्होंने ले ली है, और ये खुद अमेरिका के लिए एक बड़ा पैनिक सिचुएशन है। दूसरी तरफ अभी गल्फ के अंदर ही अमेरिका का एक फ्लैगशिप कंटेनर जहाज था MV स्टेना इम्पेरेटर, तो इसको भी ईरान की जो IRGC की जो स्पीड बोट्स है उन्होंने उसको रोका है, कन्फ्रंट किया है, और उसके बाद जो है उसको स्लो डाउन होने के लिए कहा, उसको जो है वो अपनी मूवमेंट चेंज करने के लिए कहा, और उसके बाद उसे अपना रास्ता बदलना पड़ा, और अमेरिका ही के एक और जहाज जो है उसने फिर इसको रेस्क्यू किया है और प्रैक्टिकली उसको लेके गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि बिल्कुल एक वार सिचुएशन जो किसी लम्हे भी एस्केलेशन में बदल सकती है, फुल फ्लेज एस्केलेशन में, वो पूरे तौर पे एग्जिस्ट करती है। और अगर मैं पॉलिटिकली बात भी करूं तो दो हमारे पास अली शमखानी साहब की स्टेटमेंट वाज़ेह मौजूद है, जिन्होंने कहा कि जंग जो है वो हमारे ख्याल में नागुज़ीर है, जंग होगी। ये अली शमखानी जो एडवाइजर हैं सुप्रीम लीडर के, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बतौर एक जंगी माहिर की बात कर रहा हूं कि इस वक्त जो पोस्टर है वो जंग का है, मगर ये कि मुज़ाकरात का रूम अभी बाकी है, खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है ड्रॉप साइट के नाम से, आप उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उसने अमेरिकन ऑफिशियल मिलिट्री सोर्सेज को भी कोट किया है और अरब कंट्रीज के इंटेलिजेंस सोर्सेज को भी कोट किया है, जिसमें उन्होंने इतवार के बारे में प्रिडिक्ट किया कि अगर चीजें स्टक हो गई और कोई मुज़ाकरात फ्यूचर की उम्मीद ना लगी तो इतवार को इस बात का इम्कान मौजूद है कि इतवार को प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक अटैक का ऑर्डर दे, और उसके हवाले से पूरी तैयारी हो चुकी है। दूसरी तरफ जो है वो इराक़ची ने बहुत वाज़े तौर पे जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, बहुत वाज़े तौर पे कहा है कि वो दे आर फुली रेडी फॉर डायलॉग और फुली रेडी अगर जो है वो जंग होती है। तो जंग जाहिर है इसमें ईरान की मनफियत भी नहीं है, ईरान के लिए भी ये फेवरेबल नहीं होगी, लेकिन ये जंग अमेरिका के लिए जो मैट्रिक्स से जाहिर है दोनों के लिए डिफरेंट है। ईरान अपने खित्ते में मौजूद है, कहीं और जाके नहीं जंग लड़ रहा, अमेरिका कई हजार किलोमीटर दूर आके एक जंग लड़ रहा है, लिहाजा वो वल्नरेबल है। उसकी सुपीरियरिटी जो है एक नॉन ट्रेडिशनल, या अब मैं ये कहूँगा एसिमेट्रिक वॉरफेयर में ये सुपीरियरिटी नहीं रहती। ये सुपीरियरिटी उस वक्त होती है जब सिमेट्रिक वॉरफेयर होती है, जिसमें एक इक्विवेलेंस ऑफ मिलिट्री पावर और मिलिट्री की जो क्वालिटी है आपकी पावर की वो तकरीबन सेम होती है, तो ये उस वक्त होता है। इस वक्त ये ऐसी चीज बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा इसका इम्कान बहुत मौजूद है। एक बार फिर जंग की कैफियत जो है वो क्रिएट हुई है, लेकिन चूंकि सिचुएशन फ्लूइड है, ये किसी लम्हे भी बदल सकती है। और वार ऑफ नर्व्स के अंदर जो आखिरी वर्डिंग कही है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो बहुत आप कह लें कि अलार्मिंग है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान की सुप्रीम लीडर को ही शुड वरी,
उसे परेशान होना चाहिए। अलबत्ता ये उसकी अपनी मिस कैलकुलेशन है, उसे नहीं अंदाजा। वरीड होने के लिए तो बहुत पहले से मवाद और मटेरियल मौजूद है, लेकिन इस सब के बावजूद वो जमकरान जा रहे हैं, इस सब के बावजूद वो इमाम खुमैनी की मज़ार के ऊपर जा रहे हैं, इस सब के बावजूद वो ईरानी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और ये क्लियर कट इंडिकेटर है कि दे आर नॉट वरीड, वो परेशान नहीं है। इसका मतलब ये है कि परेशानी किसको है? वो अमेरिका को है, कि जिसकी स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी कामयाब नहीं हो रही, और ईरान को बुलिंग करने की जो उसका प्लान था वो बहरहाल इफेक्टिव नहीं रहा, और ईरान बहुत होशमंदी के साथ, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी के साथ, और बहुत जबरदस्त आप कह लें कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के मैदान में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, और मिलिट्री अपीयरेंस भी जो उनके पोस्चर है और इसके अलावा उनकी जो रेडीनेस है वो इतनी जबरदस्त है कि अमेरिका को पता है कि पहले ही चंद घंटों के अंदर जो अगर फर्ज करिए एस्कुलेशन हो जाती है तो अमेरिका का ह्यूमन लाइफ जो है वो यकीनी है ट्रूप्स का, और अगर ऐसा कोई लॉस होता है तो इस वक्त जो करंट डोमेस्टिक सिचुएशन है अमेरिका के अंदर वो तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है। कई स्टेट्स अमेरिका की, इंशाल्लाह इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, बाकायदा तौर पे फेडरल एजेंट्स को बैन कर चुकी हैं। आइस जो वहां की इमिग्रेशन के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक फोर्स बनाई है, उसके खिलाफ मुकदमात शुरू हो चुके हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप की इंपीचमेंट के हवाले से बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ सेनेटर्स ने यह कह दिया है कि वो उसको प्रोवोक करेंगे इंपीचमेंट क्लास को। और इसके अलावा सिचुएशन वहां पे बहुत हैवीली डिवाइडेड हो गई है, और तकरीबन 27 अमेरिकन स्टेट्स के लॉ मेकर्स ने इकट्ठे होकर जो है वो कहा है कि वो इस अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसको और उसके इन एक्ट्स को जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो डोमेस्टिक प्रेशर भी हो रहा है, और एक बड़ा धमाका इस वक्त जो हो चुका है वो एपस्टाइन फाइल्स की शक्ल में हो चुका है। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, चूंकि बहुत कंप्रीहेंसिव है, इसके अलग अलग पहलुओं के ऊपर बात करनी पड़ेगी, लेकिन ताजा तरीन मामला 2004 में वहां पर तैनात होने वाले 2024 में तैनात होने वाले जो यूके के एक सफीर का मामला है, जिसके एपस्टाइन फाइल के साथ कनेक्शंस जो हैं वो स्टार्मर जो वज़ीर आज़म हैं यूके के, उसने तस्लीम कर लिया है, और यूं एक नया बहरान यूके के अंदर पैदा हो गया है। और यूके के लॉ मेकर्स ने मुस्तफ़क़ा तौर पर यह डिसाइड किया है, अगरचे अभी वहां पर लॉ एनफोर्समेंट के लोगों ने एप्लीकेशन दी है कि इन फाइल्स को पब्लिक न किया जाए, चूंकि कुछ बहुत सीक्रेट्स हैं, लेकिन बहरहाल अभी तक लॉ मेकर्स ने डिसाइड किया कि इसको जो है वो पब्लिक किया जाए। तो हो सकता है कुछ चीजें पब्लिक करें और कुछ ना पकड़ें। तो एक भूचाल इस वक्त दुनिया के अंदर आने वाला है एपस्टाइन फाइल के नतीजे में भी, और अमेरिकन प्रेसिडेंट की पूरी कोशिश है कि वो एक ऐसा महाज खोल दे कि जिसके नतीजे में डोमेस्टिक प्रेशर्स जो है वो उसके लिए डाइल्यूट हो जाएं और वो कुछ आगे परफॉर्म कर सके। ऐसा लगता नहीं है, चीजें इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट की फेवर में नहीं है। और मुझे एक बार फिर वो अल्फाज याद आ रहे हैं कि जब जिमी कार्टर के दौर में ईरान के ऊपर एक वेनेजुएला तरस का ऑपरेशन करने की कोशिश की गई थी, और उसके नतीजे में सहराए तबस में बहुत सारे अमेरिकन ट्रूप्स, बिलखुसूस यही जो डेल्टा फोर्स थे, वो ना फकत ये कि मारे गए बल्कि उनका जबरदस्त माली जानी दोनों नुकसान हुआ। और उस वक्त उन्होंने कहा कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये तबाह हुए हैं। तो ईरान ने ऑफिशियली ये कहा कि अगर ये ऐसा हुआ है और ये आपके लोग इस वजह से मारे गए हैं तो यू हैव मोर ट्रूप्स, और आपके पास और जहाज भी है तो दोबारा भेजें। तो दोबारा भेजने की जरूरत नहीं हुई थी। और उस वक्त जिमी कार्टर में, जो सिर्फ इस वजह से इलेक्शन हार गए थे कि इस आप कह लें कि ऑपरेशन की मंजूरी जिमी कार्टर ने दी, और उसके बाद उसका इतना बैकलैश आया कि उसकी वजह से वो नेक्स्ट इलेक्शन हार गए। तो वहां पर जिमी कार्टर ने अमेरिकन कांग्रेस में एक स्पीच की थी, और स्पीच करते हुए यह फिक्रा कहा था कि सब कुछ हमारे साथ था और हमारे हाथ में था, लेकिन उस दिन अल्लाह जो है वो ईरान के साथ था। बस ये जो एक चीज है ये आप नहीं इसको मैयर कर सकते, नहीं इसको एनालाइज कर सकते, लेकिन ईरान की लीडरशिप पूरी तैयारी के साथ इस वक्त जिस पर रिलाय करती है वो एक ही फिक्र करते हैं। वो कहते हैं मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, हम अल्लाह पर तवक्कल करते हैं और अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। ज़मीन के ऊपर जो तैयारी थी वो हमने सारी की सारी की हुई है, लिहाजा इस तवक्कुल और तैयारी का नतीजा क्या निकलता है वो यकीनी है, और उनका ये यकीन है कि वो उनको कामयाबी मिलेगी। और इस वक्त जो अगर हम अपीयरेंस सारी चीज़ों को कंक्लूड करें तो लगता है कि अमेरिका बहुत वल्नरेबल है और बहुत मुश्किल में है। अगरचे जंग हर दो के लिए नुकसानदेह है, लेकिन अमेरिका के लिए उसकी तबाही नाकाबिल तलाफी होगी। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।